Students, can you see on your screen stock or inventory topic? Yesterday we had discussed about this. Have you remember? Yesterday we had discussed this topic, na? Speak, students. More anyone is messaging. आप क्लोज कर दिए. Okay. Now you can unmute your voice. Now you all are able to unmute your voice. You can Yes, sir. unmute. Okay. So students, so I was saying that yesterday we were discussed the last topics, the stock or inventory. You must be remember this. Okay. Now we continue the next topic, trade receivables and debtors. So many times we had heard the name of trade receivable, which includes debtors and bills receivable. So today we will discuss about what is debtor, then trade receivables means होता है कि whatever amount we have to receive from our customers, whatever amount we have to receive from our customers for the sale of goods on credit is called trade receivables. Trade receivables may be comprises of two parts, debtors and bill receivable, right? So separately we will just study here what is the meaning of trade receivable, what is debtor and what is bill receivable. I think you all are clear here by one single line what I had said. Uh, the money or amount which are receivable from our customer for the sale of goods to them on credit is called trade receivables, right? So now we continue. Here you can see the term trade receivables has been used in the revised schedule 6 to the Companies Act 1956. So हमारे इंडिया में इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 बना हुआ था, जिसके अंडर सभी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है. उस कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 6 में जो रिवाइज करने के बाद शेड्यूल 6 बना था, उसमें लिखा गया है एंड नाउ इन कंपनीज एक्ट 2013, और अब आज प्रेजेंट टाइम में जो है कंपनीज एक्ट 2013, इसमें काफी चेंजेस हुए टू रिप्रेजेंट्स बोथ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. सो ट्रेड रिसीवेबल्स आर दोज पर्सन्स, लिसन इट केयरफुली, trade receivables are those persons or firms to whom either goods have been sold on credit or services rendered on credit, or they have agreed in writing, they have agreed in writing to pay the specified amount at a future date to the seller of goods or services. So it would be better to know both debtors and bill receivables separately. So I think students, so in the beginning of this class, I have told you all people the money which we have to receive from our customers due to sale of goods on credit is called trade receivable. The same thing is here, but it is saying there कि here the customer or buyer will promise in writing. Okay, so let me study separately what is the debtor and bill receivable, because this definition is of trade receivables. Okay, so trade receivable comprises of debtor and bill receivables. So now we come to on the debtors first. The person or firm, you know, firm means suppose that किसी एक कस्टमर को, छोटे मोटे कस्टमर जो होते हैं कंज्यूमर, उनको भी आप सेल करते हो गुड्स उधार,
वो भी कस्टमर होते हैं। अगर आप होलसेलर हो, इफ यू आर होलसेलर तो यू विल सेल टू रिटेलर्स, इफ यू आर प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स तो यू विल सेल टू अ फर्म और होलसेलर्स। सो होलसेलर या रिटेलर क्या होता है, उनका अपना फर्म होता है, अपना नेम होता है बिजनेस का। सो दिस वांट टू सजेस्ट यू that this person, the person or firm, या तो पर्सन को या तो फर्म को, टू whom जिसको गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको अपने गुड्स उधार बेचा है, या तो अगर आप गुड्स में डील नहीं करते सर्विसेज करते तो और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड डेटर्स। जैसे आपकी बार्बर की दुकान है, आप चलाते हो कई जगह ब्रांचेस ओपन करके, अपने आप एम्प्लॉय रखे हो बार्बर हेयर कट करने के लिए, तो आपके यहाँ क्या हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, तो कोई कस्टमर आता है जो हेयर कट कराता है, बोलता है पैसा बाद में देंगे, तो दिस इज आल्सो ओके। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, you consume the electricity service and you will pay bill on time, so it is paid, but sometimes you pay it later, so you will be data for him. Okay, so the person or firm to whom goods have been sold on credit or services rendered on credit और कॉल डेटर्स। तो जो भी सर्विस या गुड्स हम उधार कस्टमर को सेल करते हैं उसे डेटर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कह रहा है टिल दे मेक द कंप्लीट अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स देम, टिल तब तक जब तक कि दे मेक द कंप्लीट अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स देम दे विल बी कॉल्ड डेटर। जब तक कि हमारा कस्टमर पूरा पेमेंट नहीं कर देगा जितने रुपए का हमने गुड्स उधार बेचा है, तब तक के लिए वो मेरे लिए वो क्या होगा, डेटर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि यहाँ पर क्लास में हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट का, चेतन और मानस है, यहाँ पर हम दो लोगों का नाम लेते हैं ऊपर से। चेतन सेलर है और मानस कस्टमर है, बायर है। तो चेतन ने मानस को 20,000 रुपए का गुड्स क्रेडिट पे सेल किया। चेतन ने क्या किया, चेतन हैज सोल्ड गुड्स टू मानस ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000, okay, and Manas is promising to pay to Chetan within 2 months. So suppose that after 1 month Manas has paid ₹10,000, यानी पार्टली पेमेंट कर दिया। So अभी भी मानस क्या डेटर नहीं है? जब तक मानस है, जब तक पूरा पैसा नहीं दे देगा तब तक वो डेटर होगा। तो यस, वेरी गुड। सो फुल पेमेंट पे तो कह रहा है टिल दे में, हाँ, till they make complete amount due towards them, they will be called debtors. For instance, goods sold to Ram worth ₹5,000 on credit. Ram is debtor of our firm till he clears the full amount, right? The amount due towards Ram is debt, so he is our debtor. And now debtors are shown in the balance sheet on the asset side. Where we show debtors? Balance sheet in asset side, right? So अब आगे कह रहा है कि under the head of current asset, as you have studied already about the current assets and liquidity order and so on. So we know that debtor is a part of current assets, okay, and it is to be shown in the asset side of balance sheet. So now debtor is clear. So trade receivable include debtor and bill receivable both. Both are the customers. Some debtors do not give in writing. This is called debtors, and some customers give in writing. This is called bill receivable. This is the difference. Let me continue. कि डेटर्स क्या होता है, जब मैंने उधार बेचा तो हो गया, और भी एक पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल का, दोनों मिला दो तो टीआर कहलाता है। अब आते हैं बिल्स रिसीवेबल पे। सो बिल्स रिसीवेबल, ये बिल्स रिसीवेबल आप लोग के दिमाग में जो एक क्राइटेरिया चल रहा होगा कि बिल जो गुड्स खरीदते हैं उसका जो बिल बनता है वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग के सिलेबस में एक पूरा चैप्टर है बिल्स रिसीवेबल के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से। वो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग छोटा मोटा थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिमाग में जनरल आइडिया रखते हैं। सो कह रहा अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन बाय द सेलर ऑफ गुड्स ऑन द बायर ऑफ गुड्स डायरेक्टिंग द लेटर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट एट अ फ्यूचर डेट। तो इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, कौन लिखता है, सेलर। हमने एग्जांपल क्या लिया था अभी, चेतन और मानस का। मान लो चेतन ने गुड्स बेचा 20,000 का मानस को ऑन क्रेडिट, तो चेतन सेलर है और मानस क्या है, बायर है। तो अब हाँ, मानस
से पैसा मांगेगा चेतन कि मेरा पैसा दो, 20,000 का गुड्स बेचा हमने, अब तुम उधार नगद में। तो बोला नहीं, हम पैसा अभी नहीं देंगे, हम 2 महीने बाद देंगे। सपोज दैट उसने बोला आफ्टर 2 मंथ्स ही विल पे। तो अब जो चेतन कहता है ठीक है आई एग्री, बट जो तुम कह रहे हो कि 2 महीने बाद दोगे, ये आप मुझे एक रिटेन फॉर्म में दे दो ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो अब एग्रीमेंट में सर। हाँ, एग्रीमेंट में। वेरी गुड। तो अब मानस क्या करेगा कि वेयर शुड आई राइट, मानस पूछेगा ना कुछ ऐसा लीगल होना चाहिए। तो चेतन कहेगा वेट आई एम गिविंग। सो चेतन एक पहले से ड्राफ्ट बनवा के रखा होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जिसका एक अपना फॉर्मेट होता है, हम लोग पढ़ेंगे बुक में आगे। तो उस फॉर्मेट को निकालता है, उसमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखता है, और जो गुड्स परचेज करता है यानी कस्टमर को हम कहते हैं ड्रॉवी। कस्टमर को क्या कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लैंग्वेज में? ड्रॉवी। और जो सेलर होता है उसको कहते हैं ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर का मतलब जो बिल ड्रॉ करता है, और ड्रॉवी मीन्स जिसके नाम से बिल ड्रॉ किया जाता है, जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेलर बायर के ऊपर बिल लिखता है कि कितने महीने बाद किस टर्म्स और कंडीशन के आधार पर ये बंदा हमको पेमेंट करेगा। जो बात वो कहा उस बात को उस बिल में लिख देता है। लिखने के बाद अब सेलर क्या करता है कि अपने कस्टमर को दिखाता है बिल कि देख लो, आप पढ़ लो, जो चीज आपने कहा वो सब लिखा है। जब बायर संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि नहीं एवरीथिंग इज ओके एज आई हैव सेड, सो वो क्या करेगा, द बायर विल पुट हिज सिग्नेचर by writing the word accepted। सो बायर क्या करेगा, उस पे अपना सिग्नेचर करेगा, और क्या लिखते हुए? एक्सेप्टेड, मतलब उसने स्वीकार किया टर्म्स और कंडीशन को। Students, now sorry for inconvenience for a little bit moment. So we were discussing here bill receivable. So मैंने बताया कि जब बायर अपना सिग्नेचर करेगा उस पे एक्सेप्टिंग वर्ड लिखकर, एक्सेप्टेड, वो वापस एक्सेप्ट वर्ड लिखने के बाद वो बिल वापस रिटर्न कर देता है सेलर। ओके, तो सेलर कौन होता है? ड्रॉवर। अब सेलर क्या करता है, इस बिल को एज ए प्रूफ अपने पास रखा रहता है। जो एग्रीमेंट में लिखा है कि 2 मंथ्स लेटर ही विल पे, सो जब 2 महीना होगा तो वो सेलर यानी ड्रॉवर उस बिल को ड्रॉवी के पास ले जाएगा, यानी बायर के पास, उससे कहेगा आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डेट पूरा हो गया तो इसका पेमेंट कर। ठीक है, तो जब तक वो पेमेंट नहीं किया है तब तक के लिए वो बिल रिसीवेबल की कैटेगरी में रखा जाएगा। सेलर के लिए यही बिल रिसीवेबल कहलाता है, क्योंकि सेलर को बिल से पैसा रिसीव करना है, और यही सेम बिल जो बायर होता है उसके लिए कहलाता है बिल्स पेबल, क्योंकि उस बायर को उस बिल का पेमेंट करना होता है। राइट। सो रीजन यही है कि सेम इंस्ट्रूमेंट फॉर अ पर्सन इट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल एंड फॉर अदर पर्सन इट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। जैसे एक सेलर होता है तो दूसरा बायर होता है, तो ठीक उसी तरह एक बिल रिसीवेबल होता है तो दूसरा बिल्स पेबल होता है। so, यहाँ तक समझ में आ गया कि बिल रिसीवेबल क्या होता है सभी को? यस सर। हाँ, तो आगे देखो एक्सप्लेन किया है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल रिसीवेबल फॉर द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसे हम ड्रॉवर कहते हैं, आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द बायर ऑफ गुड्स, यानी ड्रॉवी जब एक्सेप्टेंस देता है। एंड बिल रिसीवेबल्स आर शोन on the asset side of the balance sheet under the head current assets, because this is also part of debtor या trade receivable. So trade receivable comprises of two component, one is debtor, second one is bill receivable, right? डेटर क्या होता है? वो कस्टमर जिसको हम गुड सेल करते हैं बट वो रिटर्न में कुछ भी नहीं देता। लेकिन बिल रिसीवेबल क्या होता है कि जब हम कस्टमर को गुड सेल करते हैं तो रिटर्न में एक बिल एक्सेप्ट करके देता है पेमेंट करने के लिए। राइट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट रिवर्स है। जैसा हम लोगों ने अभी ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा, सेम ट्रेड पेबल्स है। आपको समझ में आ रहा होगा कि पेबल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है?
कस्टमर Buyer. के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी गुड। सो ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स मतलब जब हम किसी से गुड्स परचेस करेंगे उधार, तो जितना पैसा हमको देना है वापस, वो हमारे लिए ट्रेड पेबल्स कहलाएगा। और तब तक ट्रेड पेबल रहेगा जब तक कि हम उसका कंप्लीट फाइनल पेमेंट न कर दिए। ठीक है। सो ट्रेड पेबल आल्सो कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, राइट। सो वन डेटर होता है तो अदर क्रेडिटर होता है, वन बिल रिसीवेबल होता है तो अदर बिल्स पेबल होगा। चीजें वही है, बस नाम चेंज हो गया है। एक पर्सन के लिए एसेट्स होता है तो दूसरे के लिए लायबिलिटी यानी कर्ज होता है। ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। द टर्म ट्रेड पेबल्स हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिवाइज्ड, सेम चीज है जो कंपनीज एक्ट 1956, रिवाइज्ड शेड्यूल 6 to the Companies Act 1956 and now in Companies Act 2013 to represent both creditors and bills payable. So trade payables वर्ड देखो, पहले क्या था कि पहले जब रिवाइज नहीं हुआ था शेड्यूल 6 कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, तो अर्लियर वी वर यूजिंग सेपरेटली, डेटर्स को अलग रखते थे और बिल्स रिसीवेबल को अलग करते थे, उसी तरह क्रेडिटर्स को अलग और बिल्स पेबल को अलग। लेकिन जब से ये रिवाइज शेड्यूल 6 बना है कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013, इसमें एक कॉमन वर्ड यूज किया गया है, ट्रेड रिसीवेबल फॉर डेटर एंड बिल रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स फॉर क्रेडिटर्स एंड bills payable. Okay. So trade payables are the persons or firms from whom we have either purchased goods or चेतन का पैसा दे देना 2 महीना बाद। so purchased goods or produced or procured services on credit, or we have accepted in writing to pay the specified amount, okay, at a future date to the seller of goods, okay, or to his order. It would be better to understand both the terms, that is creditors and bills payable, separately, as we had discussed in trade receivable. So now let me go on creditor. You can see creditors are persons or firms from whom we have purchased goods or purchased services on credit. They will continue the remain our creditor till we clear their accounts by making the payment. देखो सेम कॉन्सेप्ट है। डेटर के केस में क्या था, जब तक कस्टमर हमारा वापस पेमेंट नहीं कर देता फाइनली, तब तक के लिए वो डेटर होता है। लाइकवाइज क्रेडिटर के केस में जब तक हम अपने जो सेलर का, जिससे मैंने परचेस किया है उधार, उसका पेमेंट नहीं कर देते फाइनली, तब तक हम क्या रहेंगे, क्रेडिटर रहेंगे। सो कह रहा है दे विल कंटिन्यू टू रिमेन आवर क्रेडिटर्स, यानी हमने जिससे परचेस किया है, they will continue to remain our creditor till we clear their account by making the payment. For example, purchase goods from X and company worth rupees 10,000 and rupees 3,000 have been paid so far. So we have paid just rupees 3,000. This is what? Partly payment, right? So X and company is still our creditor for 7,000 as the amount is still due towards it. Okay. So creditors are what? Shown on the liability side, a balance sheet who? under the head current liability. Now anybody wants to ask anything? Anybody about creditors?
Just speak No, up. sir. Okay. Now let me discuss bills payable. Same है, bills payable already have discussed in the form of bills receivable. Now we discuss from the customer point of view or buyer point of view. The buyer of goods or services who accepts the bills of exchange drawn by seller of goods become drawee of the bill. So who accepts the bill becomes drawee, and drawee is what? Creditor. On the acceptance Sir, of the bill of exchange, it becomes bills payable for the buyer. Okay, that is what drawee of the goods or services. जैसे ही जो बायर होता है अपना एक्सेप्टेंस देता है बाय पुटिंग द वर्ड एक्सेप्टेंस एंड बाय ही विल राइट हिज सिग्नेचर. ओके, सो जैसे ही वो अपना एक्सेप्टेड वर्ड लिखकर उस पर सिग्नेचर करता है, वो ड्राफ्ट जो होता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवी के लिए यानी बायर के लिए वो बिल्स पेबल हो जाता है, और वही बिल्स पेबल का जो हमारा सेलर होता है उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है. So कहाँ दिखाते हैं इसको भी? Hence it is a part of trade payable, so it will be shown in liability side, shown on liability side of the balance sheet under the head of current liabilities. So I think this is clear to all of you very much. Yo, any queries? Any queries, students? Can I ask? no, sir. Siddhi? Siddhi? Siddhi Narula, just unmute yourself and speak. Siddhi, बेटा आप मेरी आवाज सुन रही हो? क्योंकि यहाँ से आपका माइक्रोफोन दिख रहा है, म्यूटेड है, आप उसे अनम्यूट करो और रिप्लाई करो एस आर नो वट एवर. This means you are not serious to join the class. A network problem. Siddharth. Siddharth. यस सर. सिद्धार्थ बताइए कि ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड Yes. पेबल्स दोनों क्लियर हो गया आपका? यस सर. कोई कंफ्यूजन नहीं है? अभिनव आपको कोई प्रॉब्लम है? अभिनव? नो? ओके. मानस? मानस पांडे? यस सर. कोई कंफ्यूजन है? नो सर. ओके, सो हम लोग आगे गुड्स टॉपिक पढ़ेंगे. देखो 10 मिनट्स आर लेफ्ट. सो गुड्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं एज ए सीक्वेंस. सो गुड्स क्या होता है? In accounting terminology, goods is very important because goods are physical object which we can see or touch. Okay, in which a trader deals. Goods refers to all those things what a trader deals. जिसमें एक ट्रेडर डील करता है. डील मीन्स परचेज और सेल करता है, वो चीज उसके लिए गुड्स होती है. कल भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में. So now see, goods is referred as the product in which the firm is dealing. It is buying and selling the product, or it is producing the product and selling it. Okay, कल हमने अपने से भी मीनिंग बताया था इसका. Goods refers to all those things which we buy for resale with the motive of earning profit on regular basis. I have taken example of mobile. If someone has purchased the mobile, even furniture, so many examples I had given. So again we are discussing. So the items so purchased are procured are part of the stock in trade. तो जो भी गुड्स हम परचेस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं फॉर सेलिंग पर्पस, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बिजनेस एंटिटी. ओके, अदर आइटम्स परचेस्ड फॉर यूज इन द बिजनेस. देखो, एक होता है सेल पर्पस के लिए था तो गुड्स कहलाएगा, बट अदर आइटम्स
purchased for use in the business are not included in the goods. कोई ऐसा सामान जैसे अगर हम ऑफिस में पेन पेपर खरीद रहे हैं तो ये स्टेशनरी आइटम हो गया, दिस इज नॉट गुड्स. हम फर्नीचर एयर कंडीशन ये खरीद रहे हैं तो ये एसेट्स हो गया, नॉट गुड्स, क्योंकि हम यूज करने के लिए खरीद रहे हैं. लेकिन जो सेलिंग पर्पस के लिए परचेस करते हैं वो हमारे लिए गुड्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म डीलिंग इन फर्नीचर, अगर एक फर्म फर्नीचर में डील कर रहा है यानी फर्नीचर की परचेस सेल कर रहा है, so buys chairs and tables is terms as good. But if a firm dealing in hardware items, अगर वो हार्डवेयर आइटम्स में डील कर रहा है, buys a table and chairs, और वो टेबल चेयर खरीदता है ताकि अपने बिजनेस में यूज कर सके, कस्टमर को बैठने के लिए, अपने बैठने के लिए, so it will be considered as an asset under the head furniture and not goods. मतलब फर्नीचर हेडिंग में एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड होगा, गुड्स में नहीं रिकॉर्ड होगा. लेकिन वही अगर से हार्डवेयर की जगह फर्नीचर में डील करता तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होगा. अगर फर्नीचर डीलर भी खुद फर्नीचर अपने बिजनेस में यूज करने के लिए अलग से कोई फर्नीचर परचेस करता है या उसी में से निकाल कर कुछ फर्नीचर यूज कर रहा है जिसको सेल नहीं कर रहा है, तो वो फर्नीचर एसेट्स की कैटेगरी में रखाएगा. लेकिन जो फर्नीचर सेल करने के लिए रखा है वो उसका गुड्स होगा. तो यहाँ तक हो गया. सिमिलरली स्टेशनरी आइटम्स आर नॉट गुड्स टू ए डीलर ऑफ, सॉरी, स्टेशनरी आइटम्स आर गुड्स टू ए डीलर ऑफ स्टेशनरी. देखो अगर स्टेशनरी का डीलर है जिसने परचेस सेल कर रहा है स्टेशनरी आइटम में तो वो गुड्स होगा. बट फॉर अ फर्म डीलिंग इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अगर कहीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की आपकी बिजनेस है तो वो डील कर रहा है और स्टेशनरी परचेस कर रहा है ताकि बिल वगैरह बना सके, सो इट इज एन एक्सपेंसेज नॉट द गुड्स. तो समझ में आ गया गुड्स. अब आते हैं हम लोग कॉस्ट. तो देखो 6 मिनट्स आर लेफ्ट. कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or chargeable to a specified product or activity. तो कॉस्ट क्या एक तरीके से अमाउंट ऑफ मनी विच वी इनकर्ड, यानी कॉस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, किसी चीज को परचेस करने पे हम खर्च करते हैं, या चार्जेबल होता है टू ए स्पेसिफाइड प्रोडक्ट. जैसे कि अगर हम फर्नीचर खरीदे 20,000 रुपए का और उसको कैरिज करके अपने फैक्ट्री तक लाए 2,000 रुपए देकर, तो ये 2,000 रुपया भी उसी फर्नीचर पे चार्जेबल है क्योंकि उसके कॉस्ट को इंक्रीज करेगा. सो फर्नीचर की कॉस्ट फैक्ट्री पे आकर के कितनी पड़ी? 22,000. सो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, किसी चीज पर खर्च किए, या चार्जेबल स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और एक्टिविटी. क्लियर है? यस सर. वाउचर. 5 मिनट्स आर लेफ्ट. सो नाउ वाउचर. वाउचर क्या होता है? एक तरीके से देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वाउचर बनवाता है. ठीक है, वाउचर के कलर वगैरह अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. बट वाउचर होता है क्या है? ये एक तरीके से एविडेंस होता है, प्रूफ होता है जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है. जैसे आपके स्कूल में अगर फ्यूल भरवाना है बस में, तो पहले एक वाउचर बनेगा फ्यूल के नाम से, और वो वाउचर जो ड्राइवर लेकर जाएगा कैशियर या अकाउंटेंट के पास, वहां पर वो वाउचर उसे दे करके वो पैसा लेगा. पैसा लेने के बाद जाएगा, तेल भरवाएगा, फ्यूल डीजल वगैरह लेगा, उसका कैश मेमो लेगा और वो ले जाकर जमा करेगा. सो देखो वाउचर इज द एविडेंस और प्रूफ ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. सो नाउ सी हियर, a voucher is a written document prepared by the accountant providing the evidence of a business transaction. तो वाउचर क्या है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है. कौन प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट प्रोवाइडिंग द एविडेंस. ये क्या प्रोवाइड करता है? एक तरीके से सबूत होता है ट्रांजैक्शन का, प्रूफ होता है, एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. द एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ सोर्स डॉक्यूमेंट. और जो एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, इसको हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं. तो वो वाउचर क्या होता है? एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जांपल कैश मेमो. जब हम कुछ खरीदते हैं तो कैश मेमो मिलता है. गुड्स परचेज किया तो क्या है? हाँ, एरर एंड VIZ VIZ यानी फॉर एग्जांपल VIZ
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो ओके सर। हाँ, इसको एज एग्जाम्पल पढ़ोगे विजार्ड। तो कैश मेमो, आपको पता है कि कुछ परचेस करते हैं तो कैश मेमो मिलता है कैश खरीदने पे। परचेस बिल, अगर हम उधार खरीदते हैं तो परचेस बिल मिलता है, इनवॉइस सेल्स बिल मिलता है। पे इन स्लिप क्या होता है, जैसे आप जब बैंक में पैसा जमा करने जाते हो तो एक फॉर्म मिलता है, उसमें कितने रुपए का नोट आप कितना जमा कर रहे हो, उसमें 2 पार्ट होते भरना हैं, है सर, कंप्यूटर पार्ट, ठीक है। तो वो पे इन स्लिप उस पे लिखा होता कितनी है। पड़ता है सर, एक तो उसमें भरना है। हाँ, पे इन स्लिप देखो लिखा हुआ, जो जमा करते हो वो प्रूफ होता है कि हमने इतना पैसा जमा किया, एक्सेट्रा। सो वाउचर आर द प्रिंटेड फॉर्म्स ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म का वाउचर उसके फर्म के नाम से होता है, प्रिंटेड होता है। एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, और ये बताता है वाउचर कि कितना, कौन सा अकाउंट डेबिट किया गया है और क्रेडिट किया गया है, कितने रुपए से। On the basis of vouchers, transactions are recorded for the first time. Voucher के आधार पर सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं transaction in the books of original entry, that is in journal or in the subsidiary book. Already पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है। As accounting entries are passed on the basis of vouchers, so they are usually called as accounting vouchers. इसीलिए वाउचर्स को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग वाउचर, क्योंकि उसी के बेसिस पे जनरल एंट्री या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होता है। कह रहा है एंड सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस इज अटैच्ड विद द वाउचर्स। और जितने वाउचर होते हैं, जैसे अब बस वाला गया था फ्यूल लेने, मान लो कि 2000 रुपए का फ्यूल उसे फिल कराना था, तो वो अकाउंटेंट के पास गया, वाउचर दिया, फिर अकाउंटेंट से वाउचर लेकर गया कैशियर के पास, पैसा लिया, और फिर वो गया पेट्रोल पंप पे, वहां से डीजल या फ्यूल लिया, और फ्यूल लिया तो वहां से कैश मेमो मिला। वो कैश मेमो लाकर वापस से वो देगा अकाउंटेंट को। तो अकाउंटेंट क्या करेगा या कैशियर क्या करेगा, उस वाउचर के साथ उस कैश मेमो को अटैच कर देगा, ताकि प्रूफ रहेगा कि इतने का वाउचर था और इतने रुपए का ये कैश मेमो है जिस पर्पस के लिए गया था। सो वाउचर अलग हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट अलग हो गया। So usually called accounting vouchers, and source document of each transaction is attached with the vouchers. All the vouchers are numbered. हर voucher का अपना एक sequence number होता है, एक पूरा bunch होता है, उसमें नंबरिंग पड़ा होता है, serial number are numbered and signed by its maker. और जो voucher बनाता है जो accountant, वो अपना signature करता है, right? तो आज बस इतना ही, क्योंकि now the time is less than 1 minute, it will be over. So students, so now today's class is clear. सभी लोग को समझ में आ गया? Yes, sir.